اور جامبیل خوڑ میں پانی کی سطح بلند ہونے کے بعد ریسکیو ٹیمیں ہائی الرٹ۔ 4 باغ کے مقام پر دریا میں پھنسے کئی بچوں کو بحفاظت نکال لیا گیا۔ اپردیر میں مدرسے کے قریب آسمانی بجلی گرنے سے بھگدڑ مچنے سے 28 سال بعد زخمی۔ ریسکیو کے مطابق آسمانی بجلی گرنے کا واقعہ واڑی کے علاقے اسوڑئی درہ میں پیش آیا۔ تمام زخمی طالبات کو قریبی اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ ادھر گلگت بلتستان کے ضلع استور میں بھی طوفانی بارشوں کے بعد ندی نالوں میں طغیانی، ریسکیو ٹیمیں ہائی الرٹ۔ سوات میں جھیل سیف اللہ میں سیاحوں سے بھری کشتی لٹ گئی۔ ایک ہی خاندان کے 5 افراد جاں بحق، کشتی میں 9 افراد سوار تھے، 4 کی تلاش جاری۔ ضلعی انتظامیہ کے مطابق حادثے کے بعد ریسکیو آپریشن شروع کیا گیا۔ کشتی پر سوار تمام افراد کا تعلق ایک ہی خاندان سے تھا۔ 4 لاپتہ افراد کی تلاش جاری ہے۔ لاہور کے مختلف علاقوں میں موسلا دھار بارش، تیز ہوائیں چلنے سے گرمی اور ہوس کا زور ٹوٹ گیا۔ فیروز پور روڈ، جیل روڈ، کوئنز روڈ پر موسلا دھار بارش۔ اسلام پورہ، ساندہ روڈ، چوبرجی میں بادل جم کر برسے۔ ایبٹ روڈ، لکشمی چوک، شالیمار ٹاؤن، شیرشاہ کالونی، جوہر ٹاؤن، ٹاؤن شپ، گلبرگ، فیصل ٹاؤن میں بھی موسلا دھار بارش سے جل تھل ایک ہو گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت مون سون سیزن کی پیش کی تیاریوں کا جائزہ اجلاس۔ موسمیاتی تغیرات اور ماحولیاتی خطرات سے نمٹنے کے اقدامات کا بھی جائزہ لیا گیا۔ وزیر اعظم نے کہا، پاکستان موسمیاتی تبدیلیوں کے مضر اثرات سے متاثرہ ممالک میں شامل ہے، اس لیے موسمیاتی خطرات سے مؤثر انداز میں نمٹنے کے لیے وفاقی اور صوبائی حکومتوں کے درمیان مکمل ہم آہنگی اور جامع تعاون ناگزیر ہے۔ وزیر اعظم نے متعلقہ حکام کو تمام صوبوں، آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کا ہنگامی دورہ کرنے کی ہدایت بھی کی تاکہ مون سے قبل تمام حفاظتی اور انتظامی اقدامات کا جائزہ لے کر تیاریاں مکمل کی جا سکیں۔ وزیر اعظم نے کہا، وفاقی حکومت نے رواں مالی سال کے بجٹ میں قومی آبی تحفظ اور سلامتی سے متعلق منصوبوں کی جلد تکمیل کے لیے 330 ارب روپے کی اضافی رقم مختص کی ہے۔ لاہور کے علاقے گھانا کے ٹیوشن سینٹر کی چھت گرنے سے جاں بحق ہونے والے 14 بچے سپرد خاک۔ نماز جنازہ میں شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ لواحقین غم سے نڈھال، ہر آنکھ اشکبار۔ علاقے کی فضا سوگوار نظر آئی، جبکہ پولیس نے واقعے کا مقدمہ انفورسمنٹ انسپکٹر نشتر زون کی متحیت میں درج کر لیا۔ FIR کے متن کے مطابق چھت پر غفلت اور لاپرواہی کے باعث کام کرنے سے قیمتی جانوں کا ضیاع ہوا۔ مکان مالک سمیت 5 افراد پولیس کی حراست میں ہیں۔ یہ قدرت کی طرف سے ہوا ہے، اس میں کسی کا کوئی ہاتھ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بھی معاملات ہوئے ہیں، میں خود بھی ملبے کے نیچے آئی ہوں، باقاعدہ میری اپنی بچی بھی، میرے جیٹھ کے بچے، میرے دیور کی چھوٹی سی 1.5 سال کی بچی، وہ بھی ادھر ہی موجود تھی، لیکن مجھے نہیں پتا ان کی پوزیشن کیسی ہے۔ میری بچی کو بھی چوٹیں وغیرہ آئی ہیں۔ چھت پہ کنسٹرکشن کا کام ضرور ہوا ہے، میں نے چھت پکی کروائی ہے، کیونکہ مالی حالات اتنے ٹھیک نہیں تھے کہ ہم وہ لینٹر وغیرہ ڈال سکتے یا دوبارہ سے ساری کنسٹرکشن کروا سکتے۔ میں خود محنت مزدوری کرتی ہوں، جو میرے ہسبینڈ ہیں وہ فروٹ کی ریڑھی لگاتے ہیں۔ 2 سال سے گھر میں بچوں کو ٹیوشن پڑھا رہی تھی۔ مجموعی طور پر 30 سے 35 بچے ٹیوشن آتے تھے۔ سانحہ کہنا میں زخمی ٹیچر کا بیان، کہا، بچوں کو پڑھانے کے دوران چھت پر کام نہیں ہو رہا تھا۔ میری بچی، جیٹھ اور دیور کے بچے بھی وہاں موجود تھے۔ ذرائع آمدن کم ہونے کے باعث گھر میں ٹیوشن پڑھا کر معمولات زندگی چلا رہی تھی۔ سانحہ کہنا، قائد مسلم لیگ نون نواز شریف کا 14 معصوم بچوں کے جاں بحق ہونے پر دلی رنج کا اظہار۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر اپنے بیان میں کہا، یہ ننھے پھول قوم کا مستقبل تھے۔ دکھ کی اس گھڑی میں میری ہمدردیاں سوگوار خاندانوں کے ساتھ ہیں۔ نواز شریف نے کہا، مریم نواز نے مجھے بتایا وہ مصمم ارادے کے ساتھ مجرموں کو قرار واقعی سزا دلوائیں گی۔ افغان طالبان حکومت کی جانب سے بلوچستان میں سرحد پر ڈرونز پروازیں۔ پاکستان نے مؤثر جوابی کارروائی کرتے ہوئے 4 ڈرون مار گرائے۔ بر وقت اور مؤثر کارروائی کے باعث مبینہ طور پر دشمن کے تمام عزائم ناکام بنا دیے۔ ISPR نے کہا کہ افغان طالبان رجیم کی جانب سے اس نوعیت کی کارروائیوں کا مقصد اپنی حکومت کے زیر اثر مشکلات کا شکار افغان عوام کی توجہ ہٹانا ہے۔ کہا، افغان طالبان کو اپنے عوام کو ایسے اقدامات اور بیانات کے ذریعے مطمئن کرنے کی کوشش کرنے کی بجائے دہشت گردی کی سرپرستی ترک کرنی چاہیے۔ ISPR نے خبردار کیا کہ اگر افغان طالبان نے پاکستان کے خلاف اشتعال انگیزی یا سرحد پار کارروائیاں جاری رکھی تو انہیں ایسا مؤثر جواب دیا جائے گا جس کی انہیں بھاری قیمت چکانا پڑے گی۔ سرحد پار مہم جوئی یا اشتعال انگیزی کا فوری، فیصلہ کن اور بھرپور جواب آپریشن غضب للحق کے تحت دیا جاتا رہے گا۔
पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में दहशत गर्दों के खिलाफ कार्रवाई से मुतल्लिक भारतीय बयान मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा ताहिर अंद्राबी ने भारतीय वजारत खारजा का बयान बेबुनियाद और हकायक के मुनाफी करार दे दिया। कहा, पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में दहशत गर्दों के बुनियादी ढांचे के खिलाफ अपनी जायज कार्रवाइयाँ की। भारत गैर कानूनी तौर पर मकबूजा जम्मू कश्मीर में कश्मीरी अवाम के हक खुद इरादियत को मुसलसल दबाने में मसरूफ है, जबकि अफगान सरजमीन से पाकिस्तान के खिलाफ सरगर्म दहशत गर्द गिरोहों की सरपरस्ती भी कर रहा है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, भारत अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करता है। भारत अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की पाबंदियों की खिलाफ वर्जी करते हुए खित्ते में अमन इस्तेहकाम को नुकसान पहुंचाने वाले मुल्क का किरदार अदा कर रहा है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान अपने इख्तलाफात हल करने के लिए सिफारती और सियासी ज़राए इस्तेमाल करें। रूस की अपील। रूसी वजारत खारजा से जारी करदा बयान में कहा गया कि सरहदी इलाकों में होने वाले हालिया वाक़यात अफसोसनाक हैं। इस्लामाबाद और काबुल मुसल्लह तसादुम खत्म करें और तमाम मुतनाज़ अमूर को सियासी और सिफारती तरीके से हल करें। बयान में खत्ते में बढ़ती हुई कशीदगी पर तशवीश का इजहार करते हुए फरीकैन से तहम्मुल और मुज़ाकरात की तरफ वापस आने की अपील की गई। ईरान के साथ मामलात खुश असलूबी से आगे बढ़ रहे हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की वाशिंगटन में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, ईरान न्यूक्लियर हथियार नहीं रख सकता। ईरान के साथ अच्छी मुलाकातें हुई हैं। बातचीत का वाहिद मकसद ईरान को एटमी हथियारों के हसूल से रोकना है। स्टॉक मार्केट से ऊपर जाने से हर किसी को फायदा होगा। तेल की कीमतों में कमी का सिलसिला भी जारी है। मीडिया से गुफ्तगू के बाद सदर ट्रंप कतर की जानिब से तोहफे में दिए गए तैयारे पर नॉर्थ डकोटा रवाना हुए। सऊदी वजीर खारजा शहजादा फैसल बिन फरहान का दौरा चीन। चीनी वजीर खारजा वांग यी से मुलाकात। इस दौरान अमरीका ईरान मुफाहमती याददाश्त पर तबादला ख्याल किया गया। चीनी वजीर खारजा ने कहा, मुज़ाकरात का तसलसल और जल्द जामे मुआहिदा खित्ते के अमन के लिए नागुज़ीर है। अमरीका और ईरान मुफाहमती याददाश्त पर अमल दरामद जरूरी है। जंग के मुकाबले में मुज़ाकरात और तसादुम के बजाय मुकालमा ही बेहतर रास्ता है। सऊदी अरब के साथ मिलकर खित्ते में कशीदगी कम करने और पायदार अमन के लिए किरदार अदा करने को तैयार हैं। सऊदी वजीर खारजा शहजादा फैसल बिन फरहान ने कहा, वन चाइना पॉलिसी की हमायत करते हैं। सऊदी अरब चीन के साथ दो तरफा ताल्लुकात को फरोग देने का ख्वाहां है। चीन के साथ इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के लिए ताउन मजीद मजबूत बनाना चाहते हैं। अमरीकी खसूसी एलची स्टीव विटकॉफ और सदर ट्रंप के दामाद जैरेड कुशनर की दोहा में कतरी वजीर आजम से मुलाकात। तेहरान और वाशिंगटन के दरमियान जारी मुज़ाकरात पर तबादला ख्याल। कतरी वजारत खारजा के मुताबिक वजीर आजम ने मुलाकात के दौरान कतर की सालसी की कोशिशों का अयादा किया। मुफाहमती याददाश्त के मुताबिक मुज़ाकरात की हिमायत का इजहार, खित्ते की ताज़ा सूरत हाल पर बातचीत। मुलाकात में लेबनान में जारी जंगबंदी की पेशरफ्त पर भी गौर किया गया। वजारत खारजा के बयान के मुताबिक ईरानी और अमरीकी तकनीकी वफूद की बातचीत मुख्तलिफ सतहों पर जारी है और ये इजलास मुख्तलिफ मकामात पर सालिसों की मौजूदगी में हो रहे हैं ताकि मुज़ाकरात का तसलसल बरकरार रहे। मुंजमिद असासों की बहाली। ईरान अमरीका मुज़ाकरात में अहम और फैसला कुन नुक्ता करार। तेहरान से अरब मीडिया ने रिपोर्ट किया है कि ईरान के लिए अपने मुंजमिद असासों का इजरा इंतहाई अहम है और यही वो बुनियादी शराइत में से एक है जिस पर आगे की बातचीत का इन्हिसार है। ईरानी हुक्काम का कहना है कि मुज़ाकरात में पेशरफ्त के लिए मुंजमिद रकूम की बहाली बुनियादी शर्त है। मुआहदे के आर्टिकल 11 में भी इसका जिक्र मौजूद है। अमेरिकी होमलैंड सिक्योरिटी के सेक्रेटरी मार्क वैन मुलन का ईरान की फीफा वर्ल्ड कप से बाहर होने पर खुशी से रक्स करने का जिक्र। ईरानी वजीर खारजा का सेक्रेटरी अमेरिकी होमलैंड सिक्योरिटी के बयान पर सख्त रद्द-ए-अमल। सोशल मीडिया पर अपने बयान में अब्बास इराक़ची ने लिखा कि मिशन मुकम्मल हो गया। मिस्टर मुलन, आपने एक और काम भी कर दिखाया। दुनिया को ये साबित कर दिया कि आप किसी बैनुल-अक़वामी टूर्नामेंट की मेजबानी के अहल नहीं है। ईरानी वजीर खारजा ने कहा कि मार्क वैन मुलन का रवैया इस बात की मिसाल है कि एक मेजबान मुल्क अपनी जिम्मेदारी और वकार को किस तरह जाया कर सकता है। अब नए हुर्मुज़ से तेल की तरसील दोबारा जंग से कबल की सतह पर पहुंच चुकी। अमेरिकी नायब सदर जेडी वैंस का बयान। कहा, इस वक्त अब नए हुर्मुज़ खुली है और वहां से ज्यादा मिकदार में तेल की तरसील देखी जा रही है। यह अमल इस बात की अलामत है कि आलमी मईशत दोबारा फाल हो रही। अगरचे मुकम्मल बहाली में वक्त लगेगा, लेकिन तेल की कीमतों में पहले ही वाज़ेह कमी देखने में आई है। इनका कहना था लेबनान इसराइल अमन मुआहदे और अमेरिका ईरान मुफाहमती याददाश्त को एक साथ देखा। दोनों दस्तावेजात का बुनियादी नुक्ता लेबनान की इलाकाई सालमियत का एहतराम है। अमरीकी नायब सदर के मुताबिक खित्ते में मुआहिदों के मुअस्सर निफाज से तवानाई की तरसील और इलाकाई इस्तेहकाम में मजीद बेहतरी की तवक्को की जा सकती है।
बहरी नाकाबंदी खत्म होने के बाद ईरान 5 करोड़ बैरल खाम तेल बरामद कर चुका है। टैंकर्स की नकलो हरकत पर नजर रखने वाले इदारे ने कहा है कि अमेरिका की जानिब से ईरानी तवानाई की बरामदात पर बहरी नाकाबंदी खत्म किए जाने के बाद ईरान 5 करोड़ बैरल खाम तेल बरामद कर चुका। एक्सपर्ट जारी बयान में कहा, जून 2026 के दौरान ईरान की यौमिया खाम तेल बरामदात औसतन 16,60,000 बैरल रही। बयान के मुताबिक खित्ते की बेशतर दीगर ममालिक की तेल बरामदात अब भी जंग से पहले की सतह से कम है, जबकि ईरान ने अपनी बरामदात में नुमाया इजाफा रिकॉर्ड किया। अमेरिका का लीबिया में इत्तेहाद की बहाली की कोशिश की हिमायत का ऐलान। आलमी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक ये बात अमेरिकी वजीर खारजा मार्को रूबियो ने गुज़िश्ता रोज वाशिंगटन में लीबियाई नेशनल आर्मी के नायब कमांडर सद्दाम हफ्तर से मुलाकात के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कही। इन्होंने कहा, अमेरिकी इंतजामिया लीबिया में इत्तेहाद की बहाली की कोशिशों की हिमायत के लिए शराकतदारों के साथ मिलकर काम जारी रखेगी। अमेरिकी वजीर खारजा ने कहा कि अमेरिका लीबियाई रहनुमाओं और बैनुल अक़वामी शराकतदारों के साथ मिलकर ज्यादा पुरअमन, मुत्तहिद और खुशहाल लीबिया के क़याम की हिमायत जारी रखेगा। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह और वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की मुलाकात। वफाकी हुकूमत से मुतल्लिक बैनुल सूबाई अमूर और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल, सियासी सूरत-ए-हाल और सूबों में अवामी फलाही मंसूबे भी ज़ेर गौर आए। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कहा, बैनुल सूबाई ताउन के फरोग से अवामी मसाइल के हल और मुल्की इस्तेहकाम की कोशिशों को मजीद तक़वियत मिलेगी। तमाम फैसले अवामी मफाद में किए जाएं। FBR की बेहतरीन कारकर्दगी, टारगेट 12.83 ट्रिलियन से तजावुज, 13 ट्रिलियन अबूर कर लिया। माली साल के दौरान 599 अरब के टैक्स रिफंड्स जारी किए। आखिरी रोज 13.5 अरब रुपए के टैक्स रिटर्न जारी किए। वफाकी वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का FBR में लीडरशिप और फील्ड फॉर्मेशन के हवाले से इजलास से खिताब। कहा, माजी में कभी इतनी मुद्दत में टारगेट हासिल नहीं किया गया। मुसलसल इस्लाहात और बेहतर रेवेन्यू कारकर्दगी की वजह से कामयाबी हासिल की। गुज़श्ता 2.5 बरस के दौरान टैक्स वसूलियाँ दुगनी हो चुकी हैं। मसनूई जहानत और डिजिटल इस्लाहात से FBR को मुअस्सर इदारा बनाया जा रहा है। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने मजीद कहा कि माली खसारा कम होने से मुल्की मईशत की बुनियादें मुस्तहकम हुई हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मॉनसून सीजन की पेश की तैयारियों का जायजा इजलास। मौसमियाती तगय्युरात और माहौलियाती खतरात से निपटने के इक़दाम का भी जायजा लिया गया। वज़ीर आज़म ने कहा, पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों के मुज़र असरात से मुतासरा ममालिक में शामिल है, इसलिए मौसमियाती खतरात से मुअस्सर अंदाज में निपटने के लिए वफाकी और सूबाई हुकूमतों के दरमियान मुकम्मल हम आहंगी और जामे ताउन नागज़ीर है। वज़ीर आज़म ने मुतल्लिका हुक्काम को तमाम सूबों, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान का हंगामी दौरा करने की हिदायत भी की, ताकि मानसून से कबल तमाम हिफाजती और इंतजामी इक़दाम का जायजा लेकर तैयारियां मुकम्मल की जा सकें। वज़ीर आज़म ने कहा, वफाकी हुकूमत ने रवां माली साल के बजट में कौमी आबी तहफ़्फ़ुज़ और सलामती से मुतल्लिक मंसूबों की जल्द तकमील के लिए 330 अरब रुपए की इजाफी रकम मुख्तस की है। वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ का कहना था कि बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी कौम का कीमती असासा है। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी मेहनत की कमाई पाकिस्तान भेजकर ज़र मुबादला में अहम हिस्सा डालते हैं। ओवरसीज पाकिस्तानीज फाउंडेशन के चेयरमैन और MD की मुलाकात में वजीर आजम ने कहा, पाकिस्तानियों की बहबूद के लिए जारी मनसूबों इकदाम में मजीद तेजी लाई जाए। वजीर आजम का ओवरसीज पाकिस्तान फाउंडेशन के इकदाम पर एतमान का इजहार। चेयरमैन बोर्ड ऑफ गवर्नर्स और MD OPF का आलमी अमन के लिए काविशों पर वजीर आजम को खिराज तहसीन पेश किया। वज़ीर आला मरियम नवाज से स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की अहम मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर, सूबे की सियासी सूरत हाल और बजट इजलास पर तफसीली तबादला ख्याल। स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान ने वज़ीर आला की 2 साला कारकर्दगी को तारीखी और बेमिसाल तौर करार दिया। कहा, पहली बार वज़ीर आला मरियम नवाज ने सुथरा पंजाब से शहरियों को सफाई और बेहतरीन माहौल का आईनी हक फराहम किया। सुथरा पंजाब और अपनी छत अपना घर प्रोग्राम को बैनुल अक़वामी पज़ीराई मिलना पंजाब के लिए काबिल फख्र है। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ की परफॉर्मेंस सिर्फ बातों तक नहीं, जमीन पर बोलती नजर आ रही है। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने पंजाब में तेज तरीन रिस्पांस और गुड गवर्नेंस का एक मिसाली मॉडल कायम कर दिया है। पंजाब असम्बली का बजट इजलास अवामी उमंगों का तर्जमान और सूबे की तरक्की का संग मील साबित होगा। हमने किसान को हकीकी मानों में बाइख्तियार बनाया। तारीख में पहली बार 3 साल में 50,000 ट्रैक्टर्स दिए जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का इजलास से खिताब। कहा, ट्रैक्टर्स की तकसीम का तरीकाकार कंप्यूटराइज कर दिया गया। माजी में किसानों को इतनी बड़ी तादाद में ट्रैक्टर्स फराहम नहीं किए गए। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत महकमा ज़राअत का इजलास, किसान कार्ड और ज़राई मैकेनाइजेशन का तफसीली जायजा लिया गया। ब्रीफिंग में बताया गया कि पंजाब में अब तक 9 लाख किसान कार्ड जारी किए जा चुके। किसान कार्ड प्रोग्राम में मजीद
50,000 काश्तकारों का इजाफा हुआ। किसानों को अब तक 360 अरब रुपए का बिला सूद कर्ज जारी किए गए। किसान कार्ड के तहत दिए गए कर्जों की रिकवरी की शरह 99% रही। किसानों को खरीफ की फसल के लिए 116 अरब रुपए के कर्ज फराहम किए गए। 34,000 ग्रीन ट्रैक्टर्स 3 मराहल में तकसीम किए जा रहे हैं। सिंध के नौजवानों को मसनूई जहानत की तेजी से बदलती दुनिया के लिए तैयार करना हमारी तरजीह है। जो कौमें आज AI तालीम में सरमायाकारी करेंगी वही कल की क़यादत करेंगी। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का गूगल जेमिनी फॉर एजुकेशन कॉर्नर की इफ्तिताई तकरीब से खिताब। कहा, AI इंजीनियरिंग, सेहत, तालीम, तहकीक और कारोबार समेत हर शोबे को तब्दील कर रही है। NDA यूनिवर्सिटी ने गूगल और टेक वैली पाकिस्तान के इश्तराक से कायदाना कदम उठाया है। सरकारी जामिया में आलमी मेयार के AI टेक्नोलॉजी तक रसाई एक अहम पेशरफ्त है। वज़ीर आला ने कहा, जेमिनी कॉर्नर सिंध के नौजवानों को आलमी सतह पर मुकाबले के लिए तैयार करेगा। तलबा सिर्फ किताबों तक महदूद नहीं रहेंगे बल्कि रोजाना गूगल जेमिनी AI के साथ अमली काम करेंगे।